وہ عورت ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے عورت پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ گدھی بن گئی؟ شروع سے لے کے آخر تک ضرور سنیے، جس سے آپ کو بھی سبق حاصل ہوگا۔ دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں نے اپنے صبر سے پہاڑوں کو ہلا دیا، مگر اس بزرگ لکڑہارے کی داستان سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب دنیا میں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، مگر ایک گمنام بستی میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کی صبح اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی اور رات سجدوں میں گزرتی۔ وہ لکڑہارا جس کا جسم بڑھاپے کی وجہ سے لرز رہا تھا، جس کی کمر پر وقت کے ساروں نے ایک گہرا خم ڈال دیا تھا، مگر اس کی پیشانی پر موجود نور یہ گواہی دیتا تھا کہ یہ شخص دنیا کا نہیں بلکہ آسمانوں کا مسافر ہے۔ اس کا صبر کوئی عام صبر نہیں تھا، یہ وہ آزمائش تھی جو صرف ان بندوں کے لیے منتخب کی جاتی ہے جنہیں اللہ اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لکڑہارے نے اپنی جوانی جنگل کی سختیوں میں گزاری۔ وہ کڑکتاتی دھوپ میں بھاری کلہاڑی اٹھا کر جنگل جاتا، پرانے اور سخت درختوں کو کاٹتا اور پھر ان کا بھاری گٹھا اپنی تھکی ہوئی پیٹھ پر لاد کر لایا کرتا۔ اس کے ہاتھوں میں لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے ایسے سخت چھالے پڑ چکے تھے جو وقت کے ساتھ پتھر بن گئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جب وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا تو ہر وار کے ساتھ اس کی زبان سے اللہ ہو کی صدا نکلتی۔ جنگل کے پرندے اور درخت بھی جیسے اس کی تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ اس نے کبھی دنیا سے شکوہ نہیں کیا، کبھی اپنی غربت پر آنسو نہیں بہائے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ اے میرے مالک، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حلال رزق کمانے کی ہمت دی۔ اس کا یہ صبر اس کے روحانی سفر کی پہلی سیڑھی تھی۔ اس بزرگ کی زندگی میں سب سے بڑا صدمہ اس وقت آیا جب اس کی نیک سیرت بیوی، جو ہر مشکل میں اس کی ڈھال تھی، اسے اکیلا چھوڑ کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس وقت اس کے پاس رونے کے لیے وقت نہیں تھا، کیونکہ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا۔ اس بزرگ نے ایک باپ اور ایک ماں دونوں کا کردار نبھایا۔ وہ اپنے معصوم بیٹے کو جنگل لے جاتا، درخت کی چھاؤں میں کپڑا بچھا کر اسے سلاتا اور خود سخت محنت کرتا۔ جب بچہ بھوک سے روتا تو وہ اپنی بھیڑوں کا تازہ دودھ نکال کر اسے پلاتا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دی، اسے ادب سکھایا اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی۔ وہ اکثر اپنے بیٹے سے کہتا، بیٹا دنیا فانی ہے، اصلی گھر آخرت ہے، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی صبر آگے چل کر اس کی اپنی پہچان بننے والا ہے۔ لیکن اصلی خوفناک آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب بیٹے کی شادی ہو گئی اور گھر میں بہو آئی۔ شروع کے کچھ دن تو سب ٹھیک رہا، مگر جلد ہی اس بہو نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا۔ اس بزرگ نے اپنی عبادت کے لیے ایک مخصوص کونا منتخب کیا ہوا تھا جہاں وہ تہجد کے وقت اٹھتا اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا۔ اس کے آنسو مصلے کو بھگو دیتے تھے، مگر اس کی بہو کو یہ سب دیکھ کر شدید غصہ آتا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ بڈھا صرف رونے دھونے کے لیے ہے۔ اس نے بزرگ پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ وہ انہیں رات بھر سونے نہ دیتی اور صبح ہوتے ہی ان کے ہاتھوں میں جھاڑو تھما دیتی۔ وہ بزرگ جس کی ہڈیاں کمزوری سے چٹک رہی تھیں، انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ گھر کا ہر کونا صاف کریں۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جب وہ بزرگ تھک کر دیوار سے لگ کر بیٹھتے تو بہو چیختی ہوئی آتی اور انہیں دھکا دیتی۔ وہ انہیں نئے نئے کاموں میں الجھائے رکھتی تاکہ وہ نماز نہ پڑھ سکیں، مگر لکڑہارے کا صبر دیکھیے، وہ ہر تھپڑ، ہر گالی اور ہر دھکے پر خاموش رہتا۔ وہ اپنے دل میں کہتا، اے اللہ، یہ تیری طرف سے امتحان ہے، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ وہ بھوک سے نڈھال ہو جاتا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، مگر وہ اپنی تسبیح نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں جاتا اور انہی لرزتے ہاتھوں سے قرآن پاک کھولتا۔ اس وقت اسے دنیا کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کا صبر ایک ایسی ڈھال بن گیا تھا جس نے اس کے ایمان کو ہر وار سے بچا کر رکھا۔ دنیا والوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ ایک شخص اتنا ظلم کیسے سہ سکتا ہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ اس بزرگ کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ خالق کائنات سے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے بھی یہ سب چھپاتا تاکہ بیٹے کا سکون برباد نہ ہو۔ یہ اس کی مردانگی اور اس کی بزرگی کا کمال تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے باتیں کرتا، یا اللہ، میری اس بے بسی کو میری عبادت بنا دے۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، اس کی چمڑی ہڈیوں سے چپک گئی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن ہر پل اللہ اللہ پکارتی تھی۔
लकड़हारे की ये आजमाइश अब अपने उरूज पर पहुंच रही थी। जुल्म बढ़ रहा था और उसके साथ ही बुजुर्ग का दर्जा भी आसमानों पर बुलंद हो रहा था। वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जहां दुनिया की कोई चीज़ उसे तकलीफ नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसने अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। ये सब्र ही था जिसने आखिरकार कुदरत के इंतकाम को हरकत में लाया। दुनिया में रिश्तों का एहतराम एक मुक़द्दस फ़र्ज़ है, मगर जब किसी इंसान के दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए तो वो दरिंदे से भी बदतर हो जाता है। उस घर की दीवारों ने जो दहशतनाक मंजर देखा, वो इंसानी रूह को कंपा देने के लिए काफ़ी है। एक औरत जो उस घर में बहू बनकर आई थी, जिसका फ़र्ज़ था कि वो अपने बुज़ुर्ग ससुर की खिदमत करके उनकी दुआएं लेती, वो जुल्म और सितम की एक ऐसी मिसाल बन गई जिसका तसव्वुर करते ही कलेजा मुंह को आता है। जैसे ही उस बुजुर्ग का बेटा खेत में काम करने के लिए घर से निकलता, उस औरत का असली और भयानक रूप सामने आ जाता। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भयानक हो जाता और उसकी ज़बान से जहरीले अल्फाज निकलने लगते। वो अपने बूढ़े ससुर को इंसान नहीं बल्कि एक नाजायज़ बोझ और मुफ्तखोर गुलाम समझने लगी थी। जुल्म का आगाज़ तब होता जब वो बुजुर्ग अभी फज्र की नमाज और कुरान की तिलावत से फारिग ही हुए होते। वो जालिम औरत उनके कमरे का दरवाज़ा लात मारकर खोलती और निहायत बेअदबी से चिल्लाती, "ऐ बूढ़े, अभी तक यहाँ बैठकर ढोंग कर रहे हो? उठो और जाकर सारा सहन साफ करो।" वो बुजुर्ग जिनकी कमर झुक चुकी थी, जिनके घुटनों में शदीद दर्द रहता था, वो थरथराते हाथों से झाड़ू उठाते और काम में लग जाते। उस जालिम औरत ने घर का सारा बोझ उनके कंधों पर डाल दिया था। वो उनसे पूरे घर का झाड़ू पोंछा करवाती, भारी भारी बर्तन धुलवाती और कपड़े धोने पर मजबूर करती। अगर कहीं मिट्टी का एक तिनका भी रह जाता तो वो औरत उन्हें गंदी गालियां देती और उनके चेहरे पर थूक देती। उसका हर लफ्ज़ उस बुजुर्ग के दिल पर तीर की तरह लगता, मगर वो अल्लाह वाला बुजुर्ग सिर्फ अपनी आंखों से आंसू बहाता और खामोशी से अपना काम जारी रखता। जुल्म की इंतहा यहाँ तक पहुँच गई कि उसने बुजुर्ग का खाना पीना भी अज़ैरन कर दिया। वो खुद तो दही, मक्खन, ताज़ा रोटियां और बेहतरीन सालन खाती, मगर अपने ससुर के लिए बासी और सड़े हुए टुकड़े फेंक देती जो जानवर भी ना खाएं। जब वो बुजुर्ग भूख से निढाल होकर पानी मांगते तो वो उन्हें कहती, "पानी पीना है तो जाकर कुएं से निकाल कर लाओ, यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो।" उसने उनकी दवाओं की शीशियां कचरे में फेंक दी और उन्हें कहती कि तू मरता क्यों नहीं, तेरी दवाओं पर हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है। वो बुजुर्ग अक्सर भूख और बीमारी की वजह से आंगन में बेहोश होकर गिर जाते, मगर वो जालिम औरत उन्हें उठाने के बजाय अपने जूते की ठोकर से मारती और कहती, "ढोंग बंद करो और उठकर काम पूरा करो।" उसका दिल पत्थर हो चुका था। उसे उन सफ़ेद बालों और पुरनूर चेहरे का ज़रा भी एहतराम न रहा। वो उन्हें नमाज पढ़ने से रोकती और उनके लिए नए नए काम निकाल लेती ताकि वो अल्लाह के हुजूर सर न झुका सकें। वो अक्सर उन्हें शदीद धूप में खड़ा कर देती और उनसे वो काम करवाती जो एक जवान मर्द के लिए भी मुश्किल थे। उसने उनका जीना हराम कर दिया था, मगर वो बुजुर्ग अपने बेटे की खातिर सब कुछ सह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अपनी बीवी से लड़े या उसका घर बर्बाद हो। वो अपनी तकलीफ अपने दिल में दबा लेते और हर रात अल्लाह से बातें करते, "या अल्लाह, मेरे गुनाहों की सज़ा है या तेरा इम्तिहान, मुझे हिम्मत दे।" उस जालिम औरत की मक्कारी का ये आलम था कि जैसे ही उसका शौहर घर आता वो फौरन मासूम बन जाती। वो अपने शौहर से कहती, "आपके अब्बा तो बहुत ज़िद्दी हैं, वो मेरा कहना नहीं मानते। वो ज़बरदस्ती घर का काम करते हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि मैं उन पर जुल्म करती हूँ।" बेचारा बेटा जो अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करता था, वो अपनी बीवी के फरेब में आ जाता और अपने बाप से कहता, "अब्बा जान, आप क्यों काम करते हैं? आप सिर्फ आराम किया करें।" वो बुजुर्ग मुस्कुराकर खामोश हो जाते। उनका दिल खून के आंसू रोता, मगर जबान से कोई शिकवा न निकलता। उन्हें मालूम था कि अगर उन्होंने सच बोला तो घर में तूफान आ जाएगा। वो अपनी हर तकलीफ, हर थप्पड़ और हर गाली को अपने अंदर जज्ब कर लेते। एक दिन जब शदीद सर्दी पड़ रही थी, उस औरत ने बुजुर्ग के कमरे से कंबल निकाल लिया और उन्हें ठंडे फर्श पर सोने पर मजबूर किया। वो बुजुर्ग सारी रात सर्दी से थरथराते रहे और अल्लाह का जिक्र करते रहे। उनका जिस्म नील गूं पड़ चुका था, आंखों के गिर्द सियाह हल्के बन चुके थे और उनकी चमड़ी हड्डियों से चिपक गई थी, मगर उस जालिम औरत को जरा भी तरस न आया। उसने उनका हर वो रास्ता बंद कर दिया था जिससे उन्हें थोड़ा सा भी सुकून मिल सके। वो औरत अल्लाह के नेक बंदों की तौहीन करके खुश होती थी। वो नहीं जानती थी कि वो जिस हस्ती को सता रही है, उसकी हर आह अर्श इलाही तक पहुंच रही है। उसका हर वार, उसकी हर बदसलूकी आसमानों पर दर्ज हो रही थी।
उस लकड़हारे का सब्र और उस औरत का जुल्म दोनों ही अपनी इंतहा पर थे। वो घर अब एक कब्रिस्तान बन चुका था, मगर ये जुल्म का दौर ज्यादा देर तक जारी रहने वाला नहीं था। कुदरत का इंतकाम हमेशा अचानक और दहशतनाक होता है। उस औरत का हर गुनाह अब भर चुका था और एक ऐसी सज़ा उसकी मुंतज़िर थी जिसने दुनिया की तारीख बदल कर रख देनी थी। वो घर जो कभी सुकून का गहवारा था, अब जुल्म व सितम की वजह से लरज़ रहा था और आसमान से फैसला नाजिल होने का वक्त करीब आ चुका था। जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन खत्म होना होता है। जब किसी मजलूम की आह आसमानों का सीना चीर कर खालिक कायनात के हुजूर पहुंचती है, तो फिर दुनिया के कवानीन खत्म हो जाते हैं और कुदरत का कहर हरकत में आता है। उस घर में जहां बरसों से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग पर सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, अब वहां फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। उस जालिम औरत ने अपनी बदनसीबी और गुनाहों का गढ़ा इस कदर भर दिया था कि अब उसमें मजीद एक बूंद की भी जगह बाकी न रही थी। वो मंजर जिसने पूरे इलाके की रूह को झंझोड़ कर रख दिया और दुनिया को ये दिखा दिया कि अल्लाह के नेक बंदों की तौहीन का अंजाम कितना भयानक होता है, वो एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक निहायत सख्त और खामोश दिन था। सूरज की हिद्दत ऐसी थी जैसे दुनिया को जला कर रख देगी। वो बुजुर्ग लक्कड़हारा हमेशा की तरह अपने कमरे में निहायत अदब व अकीदत के साथ जाए नमाज पर बैठे हुए थे। उनकी लरजती हुई उंगलियां कुरान पाक के औराक को निहायत एहतराम से पलट रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी ज़बान पर अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत जारी थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी कशिश और नूर था जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो हर हालात में अपने रब के शुक्रगुजार रहते हैं। मगर बाहर खड़ी वो औरत किसी आग में जल रही थी। उसे बुजुर्ग का सुकून, उनकी तिलावत और उनका जिक्र जहर लगता था। उसका नफ्स इब्लीस के कब्जे में था और उसने ये फैसला कर लिया था कि आज वो इस सिलसिले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। वो जालिम औरत गुस्से में पागल होकर कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा इतने ज़ोर से धक्का देकर खोला कि उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजी। वो चिल्लाती हुई बुजुर्ग के सर पर जा खड़ी हुई और निहायत बेअदबी और गुस्ताखी से कहने लगी, ए बूढ़े, तुझे कितनी बार समझाया है कि ये दिखावा और रोना धोना बंद कर, उठ और जाकर बाकी बचा हुआ काम खत्म कर। क्या तूने कसम खाई है कि तू इस घर को सिर्फ अपनी इबादत गाह बनाकर रखेगा? मगर वो बुजुर्ग आज दुनिया से इस कदर बेखबर थे कि उन्होंने कोई जवाब न दिया। वो तिलावत कुरान में इस कदर मगन थे कि उन्हें अपनी मौत का खौफ भी न रहा। ये देखकर उस औरत का गुस्सा आग बन गया और उसने वो गुनाह अजीम करने का पक्का इरादा कर लिया जिसकी सज़ा आसमानों पर तय हो चुकी थी। उसने अपने नापाक और गंदे हाथ बढ़ाए ताकि बुजुर्ग के हाथों से अल्लाह का पाक कलाम छीन सके। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस मुकद्दस किताब के जिल्द को छुआ, अचानक फिजा में एक ऐसी दहशतनाक गरज पैदा हुई जैसे आसमान फट गया हो। घर की दीवारें थरथराने लगीं और एक अजीब सा सियाह साया उस औरत पर छा गया। उस वक्त उस पर अल्लाह का वो कहर नाजिल हुआ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसका जिस्म अचानक किसी भयानक और खौफनाक तब्दीली का शिकार होने लगा। उसके हाथ और पांव टेढ़े होकर जमीन से चिपक गए। उसकी कमर झुककर एक जानवर जैसी हो गई। उसका इंसानी चेहरा अचानक लंबा होने लगा। उसकी नाक और मुंह बिगड़कर किसी बदशक्ल जानवर की शक्ल इख्तियार कर गए। उसके कान हद से ज्यादा बड़े होकर लटक गए और उसकी जबान मुंह से बाहर निकलकर किसी कुत्ते की तरह लटकने लगी। देखते ही देखते वो एक बदशक्ल और खौफनाक गधी में तब्दील हो चुकी थी। उसने चीखना चाहा, माफी मांगनी चाहिए, मगर उसके मुंह से अब इंसानी अल्फाज नहीं बल्कि एक जानवर की दर्दनाक और भयानक आवाजें निकल रही थीं जो सुनने वालों के दिलों को दहला देने के लिए काफी थीं। उसका शौहर जो उसी पल घर दाखिल हुआ था, ये मंजर देखकर पत्थर का हो गया। उसने देखा कि जिस बीवी से वो मोहब्बत करता था, आज वो अल्लाह के अजाब का शिकार होकर एक जानवर बन चुकी है। उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी नफरत थी, मगर अब वो खौफ और पशेमानी में बदल चुकी थी। अल्लाह ने उसे लोगों के लिए एक ऐसी इबरत बना दिया कि दुनिया देख ले कि जो लोग उसके नेक बंदों को सताते हैं, उनका अंजाम कितना बुरा होता है। बुजुर्ग लकड़हारा जो ये सब देखकर हैरत व खौफ से कांप रहे थे, उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। वो औरत जो बुजुर्ग को जूतियों से मालती थी, आज खुद जानवर बनकर उन्हीं के कदमों में बेबस गिरी हुई थी। उसका जिस्म जानवर जैसा था, मगर चेहरे पर अब भी कुछ इंसानी निशानात बाकी थे ताकि लोग पहचान सकें कि ये वही मगरूर औरत है। ये मकाफात अमल का वो खौफनाक सबक था जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी।
लोगों का हुजूम जमा हो गया और हर कोई इस अजाब को देखकर कांप रहा था। उस औरत को घर से निकाल दिया गया क्योंकि अब वो इंसान नहीं रही थी। उसने अपनी बाकी जिंदगी बेबसी और जिल्लत में गुजारी और आखिरकार जंगल में दरिंदों का निशाना बन गई। ये अंजाम हर उस शख्स के लिए सबक है जो घर के बड़ों की तौहीन करता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, मगर जब वो चलती है तो फिर कोई बच नहीं सकता। जुल्म की दास्तान का ये सबसे खौफनाक मोड़ था, जहां एक तरफ हक की फतह हुई और दूसरी तरफ बातिल अपने अंजाम को पहुंचा। बुजुर्ग का सब्र रंग लाया और उस जालिम औरत का गुरूर मिट्टी में मिल गया। ये वाकया क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बन गया कि कभी भी किसी मजलूम की आह ना लो, क्योंकि आसमान वाला हर चीज़ देख रहा है और उसका फैसला हमेशा अटल होता है।